Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today I am sending you the notes of English grammar, and this video is for class 8th. And class, today our topic is subject verb agreement. So what is that? I hope you all know what is it. If I say I are a boy, what is wrong in this sentence? If I am writing a sentence, I are a boy, what is wrong in this sentence? You will say that are is not used with I, am is used with I. So it is called subject verb agreement. So it means that the verb should be used according to the subject. The verb should be used according to the सब्जेक्ट. हमें हमेशा वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, योर वर्ब शुड बी सिंगुलर. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्यूलर, योर वर्ब शुड बी प्यूलर. So this coordination of subject and verb is called subject verb agreement. It means the use of verb according to the subject is called subject verb agreement. So first of all, you will write the thought. Agreement is the proof of good result. If there is a agreement between two things, you will get good result. And class, in this it is written chapter number 7, but you know this is your chapter number 10. It is your chapter number 10. So you will write chapter number 10. Okay class, this is your chapter number 10. You will write chapter number 10. And what is the title? Subject verb agreement. So first of all, we will write the definition. The use of verb according to the subject is called subject verb agreement. So as I have just told you that the use of verb according to the subject is called subject verb agreement. So okay, so class, after that you will mention the definition. You will mention a heading that rules of subject verb agreement. So now we will come to know some rules that how should we use verb according to the subject. So first rule is, when two or more singular subjects joined by and usually take a verb in plural. So what is the mean? If two subjects are joined with and, if two subjects are joined with and, then your verb will be plural. अगर आप दो सब्जेक्ट आपके हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो हमेशा प्लूरल रहेगी. For example, Ram and Hari friends. So as you two, Ram and Hari are two subjects and they are added with and, so our verb is are, so it is plural. Note, बट देयर इज़ एक्सेप्शन. एक यहाँ पे बस एक रूल रहता है. हाउएवर इट टू नोन सजेस्ट ओनली वन आइडिया. जब कोई ऐसी चीज़, दो चीज़ें जो हमेशा एक साथ ही यूज़ हो, जैसे इडली एंड डोसा, that kind of word you think always used together. ऐसी दो चीज़ें जो हमेशा साथ में एज अ पेयर आती हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें अगर एंड से भी एडेड हैं तो, लेकिन उनके साथ हमेशा वर्ब जो रहती है वो सिंगुलर रहती है. हाउएवर इफ़ टू नाउन सजेस्ट ओनली वन आइडिया और रिफर्स टू अ सेम पर्सन और थिंग, देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ओके, so it is a phrase, slow and steady wins the race. It is here study, STEADY, study. Okay, and idli and sambar is very famous in south. As you can see, two words are added with and. यहाँ पे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं एंड से, लेकिन ये कॉम्बो है जो एक आइडिया को बताता है, एक रेसिपी का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है. तो आपको एंड का ये रूल यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन टू डिफरेंट nouns are added with and, then your verb will be plural. When the same two subject which are referring the same idea, then the verb will be singular. Now we will know the second rule. If two subjects are joined by with or as well as, then the verb will be used according to the first subject. अगर आपके दो सब्जेक्ट हैं और वो
विद से और एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो वर्ब होगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ये आपको पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट हैं तो अब वो या तो उसमें विद लगा हुआ है उन दोनों के बीच में, या फिर एज वेल एज लिखा हुआ है, तो आपको जो सब्जेक्ट वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल। द प्लेयर्स विथ देयर कैप्टन डैश कमिंग। ओके, सो अब ये देखिए यहाँ पे विद से द प्लेयर्स और कैप्टन एडेड है, लेकिन जो पहला सब्जेक्ट है प्लेयर्स वो हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब क्या यूज़ हुई है, आर। अब अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता, द कैप्टन विद हिज प्लेयर्स डैश कमिंग। अब देखिए विद से ऐड है, पहला कैप्टन आया है फिर प्लेयर्स आए हैं, तो विद के पहले वाला सब्जेक्ट कैप्टन एक है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आ गया। अब देखिए दोनों सेम हैं, सेंटेंस है, बस पहले जो आएगा सब वर्ब उसके ही अकॉर्डिंग जाएगी। अगर पहले प्लूरल आता था प्लूरल वर्ब होगी, अगर सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर होगी। क्लास ये आपके एग्जांपल्स आपके बुक्स में भी लिखे हुए हैं, इफ़ दे आर नॉट क्लियर टू यू कैन चेक योर बुक, अपने बुक्स में भी आप देख सकते हैं। फिर देन थर्ड रूल, व्हेन सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद नीदर नॉर ईदर और द वर्ड एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन नियरेस्ट। अगर आपके दो सब्जेक्ट नीदर नॉर या फिर इधर और से ज्वाइंट हैं, तो आपका वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो वर्ब है वो रखनी है। तो आपको जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब रखोगे। लाइक नीदर ही नॉर आई गोइंग टू स्कूल। अब देखिए वर्ब आपकी क्या है, यहाँ पे लिखनी है, इसके पास आई लिखा हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया है, एम लिख दिया है। उसी तरह ईदर हिज ब्रदर और ही इज़ यूजिंग योर कैमरा। अब देखिए ईदर हिज ब्रदर है, उसके बाद ही है, ही के साथ हमारा क्या लगता है, इज़ लगता है, तो हमने अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देनी है, जैसे यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके पास वाला अगर सिंगुलर है, वर्ब के पास वाला सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब के पास वाला प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। जो भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब रख देनी है। विद और एज वेल एज में क्या होता है, पहले वाले के अकॉर्डिंग रखी जाती है, और नीदर नॉर ईदर और में दूसरे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब को रखा जाता है। देन ईदर नेदर ईच एवरीवन मैनी अ मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। नीदर ऑफ द टू मेन। अगर आपके इस तरह से फ्रेज दिए होते हैं, जब आपके ये अकेले आए, अगर जैसे आपका नीदर नॉर एक साथ में आ रहा है या ईदर और एक साथ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वर्ब को अकॉर्डिंग टू उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। लेकिन अगर ये अकेले आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, वर्ब को सिंगुलर ही रखना है। नीदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैनी अ मैन हैज़ सॉल्व दिस। अगर ये अकेले आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, तो आपको सिंगुलर रखनी है। फिर टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब। जो आपके ईच और एवरी से ज्वाइंट होते हैं, इनमें हमेशा क्या होता है, आपकी वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे ईच डे एंड ईच आर हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपके ईच एंड एवरी एंड से जुड़े हुए हैं, अगर आपके ईच एंड एवरी एंड से जुड़े हुए हैं तो आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी। ओके, यूज अ सिंगुलर वर्ब, डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, कलेक्शन ऑफ मनी एट्सेट्रा इज कंसिडर्ड एज यूनिट। जब कोई भी आपका डिस्टेंस दिया हो, जैसे लिया 5 माइल्स 5 किलोमीटर्स, तो एक पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स या 100 ईयर्स, कलेक्शन ऑफ मनी 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़। जब एक ऐसा आपका कलेक्शन दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो वर्ब हमेशा आपकी क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। जब 5 माइल्स इज़ टू फार फॉर वॉक,
5 मतलब यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है नंबर में, एक साथ कलेक्शन है ये, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर रहेगी। सर्टेन नाउन्स लाइक, और नाउ आपके कुछ नाउन्स होते हैं लाइक जीन्स, पैंट्स, इट्स पैंट्स लिखा हुआ है आपका, पैंट्स, ट्राउज़र एट्सेट्रा ऑलवेज टेक अ प्लूरल, ये इनके साथ हमेशा वर्ब आपकी प्लूरल ही रहती है। जैसे जीन्स है, पैंट्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, इनके साथ वर्ब आपका ग्लासेस हो गया, ग्लासेस के साथ भी वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहती है। माई जीन्स आर ऑफ अ फेमस ब्रांड, द पुलिस इज़ यूज्ड इज़ ए सब्जेक्ट इट्स टेक अ प्लूरल वर्ब। जब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। अगर पुलिस आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा कभी पुलिस इज़ कमिंग नहीं होता है। पुलिस एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ऑफिसर सिंगुलर होता है, पुलिस के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही जाती है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे पुलिस से रिलेटेड है, वेयरिंग क्लॉथ से रिलेटेड है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। द वर्ड आपका जो वर्ड न्यूज़ है उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है, ये ध्यान रखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट न्यूज़ है तो देन वर्ब विल बी सिंगुलर। इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर द वर्ब एग्रीज विद द नंबर ऑफ द नाउन दैट फॉलोज इट। यू हैव सीन सो मैनी सेंटेंस स्टार्ट विद देयर। जब सेंटेंस आपका देयर से, देयर आर 3, देयर आर 4, तो जो देयर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उसमें वर्ब के जो बाद सब्जेक्ट लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को रखते हैं। जो देयर से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ब के बाद आगे वाला हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब रखनी है। देयर इज़ अ काउ इन द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे देयर इज़, उसके बाद आ काउ देखा हमने तो सब्जेक्ट यहाँ पे एक काउ है इसलिए हमने इज़ रख दिया है। फिर देयर आर, अब देखिए यहाँ पे मैनी काउजेज लिखा हुआ है तो मैनी काउजेज के लिए हमने आर लिख दिया है। तो आपको आगे वाला सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को रख देना है जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं। नाउन्स विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ अ कंट्री और टाइटल ऑफ अ बुक टेक्स अ सिंगुलर। अगर किसी कंट्री का नाम है, किसी बुक का टाइटल का नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, ये इन सब में वर्ब जो रहती है वो हमेशा सिंगुलर ही रहती है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, किसी कंट्री का नेम है, किसी बुक का टाइटल है तो लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही। जैसे कि द अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये आप बुक में देख लीजिएगा, आपका बुक में लिखा हुआ है द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, The Arabian Nights is a collection ऑफ स्टोरीज। आप बुक में भी ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है द अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ। अब देखिए अरेबियन नाइट्स आप देख रहे हैं, लग रहा नाइट्स तो प्लूरल है तो, लेकिन ये बुक का टाइटल है इसलिए वर्ब जो है आपकी वो सिंगुलर है। अ कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब बट अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन इट स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे कि क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, बंच हो गया, इनके साथ हमेशा वर्ब जो सिंगुलर रहती है मोस्ट ऑफ टाइम। बस कभी कभी जब अगर वो इंडिविजुअली हर पर्सन अलग अलग खड़ा हो रहा है ग्रुप में तो हम प्लूरल लेंगे, एल्स कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब जो हमेशा हमेशा सिंगुलर होती है। लाइक द ज्यूरी हैज़ अनाउंस्ड इस रिजल्ट, यहाँ पे एक ज्यूरी एज अ कलेक्टिव नाउन है, यानी एक ग्रुप की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे जो ज्यूरी है वो अलग अलग, यानी हर पर्सन की बात अलग अलग हो रही है, वो डिवाइड हो गई है, हर अलग अलग हो गए, इसलिए हमने वर्ब का यूज़ किया। लेकिन कॉमनली आपको ये याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही रहती है। फिर नन दो प्रॉपरली अ सिंगुलर बट इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो आपके जो नन और दो रहते हैं इनके साथ वर्ब हमेशा आपकी सॉरी यहाँ पे आपका प्लूरल होगा। यहाँ पे आपका प्लूरल होगा। नन आर सो डीप दैट देयर हु विल नॉट हेयर। ओके,
देन एक्सरसाइजेज, यहाँ यू हैव टू यहाँ करेक्ट एडिट द सेंटेंस। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक एरर है आपकी रिलेटेड टू सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, उसको हमें करेक्ट करना है। एडिट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। तो पहले आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। नीदर ऑफ बॉयज़ आर हेयर, और जैसे मैंने बताया था कि जब सिर्फ नीदर अकेले लिखा होगा तो नीदर के साथ जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है इसलिए गलत है, तो आर आपका इनकरेक्ट है, इसकी जगह क्या पे होगा, इज़ होगा। फिर ऐसे 3 कॉलम बना लीजिएगा, एक पहला इनकरेक्ट फिर करेक्ट का। फिर शी विद हर फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग टू लंदन। अब यहाँ पे बेटे देखिए, जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं वो विद से ऐड हुए हैं, और मैंने क्या बताया था, जब 2 सेंटेंस विद से ऐड होते हैं तो आपकी जो वर्ब होगी वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होती है। तो शी लिखा हुआ है, शी सिंगुलर है, और यहाँ पे देखिए वर्ब आर दे दी है, तो आर गलत हो गया, आर इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा, इज़ होगा। फिर द न्यूज़ आर, अब देखिए न्यूज़ के साथ मैंने बताया था सिंगुलर वर्ब होती है, इन्होंने प्लूरल यूज़ किया है, तो आर गलत है, इसकी जगह क्या होगा आपका, इज़ होगा। फिर पुलिस इज़ ट्राइंग टू ट्रैप द थीव, जैसे मैंने बताया था पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाती है, उन्होंने इसका यूज़ कर लिया है, इज़ रॉन्ग है, इसकी जगह आर होगा। ईदर यू और ही हैव स्टोलन माई वॉच। अब मैंने बताया था जब ईदर और से 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं तो जो वर्ब होगी वो उसके पास वाले की होती है, तो वर्ब के पास कौन क्या लिखा है, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या यूज़ होता है, हैज़, इन्होंने हैव यूज़ किया, तो हैव रॉन्ग है, यहाँ पे हैज़ होगा। शी शैल प्लग द फ्लावर, अब देखिए शी के साथ हमेशा विल लगता है, यहाँ पे शैल हुआ है तो गलत है, विल यूज़ होगा। योर ट्राउजर्स इज़ लुकिंग वेरी फेयर, मैंने जो पैंट जो वेयरिंग क्लॉथ्स होती है उनका वर्ब हमेशा प्लूरल जाती है, और ट्राउज़र के साथ इन्होंने इज़ लिखा है, इज़ गलत है, आर होगा। फिर द पेयर ऑफ शूज़ आर इज़, अब देखिए यहाँ पे पेयर की बात हो रही है, यानी कि एक पेयर की बात हो रही है, तो वहाँ पे आर नहीं और शूज़ नहीं, पेयर एक है ना, पेयर तो 2 नहीं है, अगर सिर्फ शूज़ लिखा होता तो आर सही होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पेयर, और पेयर क्या है, एक है, इसलिए आर गलत है और इज़ सही है। फिर इसके बाद अगेन ब्रेड एंड बटर, अब देखिए ब्रेड एंड बटर एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए वर्ब नॉर्मली एंड से जुड़े हुए वर्ब के साथ प्लूरल होता है, लेकिन ब्रेड एंड बटर हमेशा एक साथ यूज़ होता है, इसलिए वर्ब जो होगी यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर होगी, और यहाँ पे प्लूरल यूज़ हुआ तो ये आर गलत है। द एनिमल्स आर एन इंटरेस्टिंग नावल, अब देखिए द एनिमल जो है एक बुक का नाम है, एनिमल्स है वो एक बुक का नाम है, तो आर यहाँ पे गलत है, इज सही होगा आपका, ठीक है। फिर देयर लाइव्स, देयर लिबर्टीज़ एंड देयर रिलीजन इज़ इन डेंजर, अब देखिए यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट ऐड हैं, एंड से लाइव, देयर लिबर्टीज़, और वर्ब का यूज़ क्या हुआ है, सिंगुलर हुआ है, तो सिंगुलर गलत है, आर सही होगा। द कमिटी हैव डिसीव्ड इज डिपेंड, अब कमिटी यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पे हैज़ होगा, कमिटी होगा, सॉरी कमिटी होगा आपका, COII हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे EE हो जाएगा, ओके। उसके बाद नन बट फूल्स, अब देखिए नन के साथ मैंने बताया था वर्ड प्लूरल होती है, तो यहाँ पे हैज़ गलत होगा, और क्या सही होगा आपका, हैव सही होगा। द फ्लीट आर गोइंग, अब फ्लीट आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इज सही होगा। शी एज वेल एज हर चिल्ड्रेन, अब देखिए एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और मैंने बताया था जब विद और एज वेल एज से सब्जेक्ट ज्वाइंट होते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग होती है, तो और पहला क्या है, शी, और शी क्या है आपका, सिंगुलर है, तो करेक्ट क्या होगा, हैज़ होगा, ठीक है। सो योर चैप्टर इज डन हेयर एंड क्लास। if you are facing any problem then you can check your books, all rules are written in your book, आप अपनी बुक में भी दे सकते हैं, अगर आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी बुक चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके क्लास, थैंक यू।